Good morning, viewers. Today is my lecture on basic life support. Myself, Virendra Singh. I am working in the Department of Emergency and Trauma Care Technology, Faculty of Paramedical Sciences, UP UMS, सैफई। आज के लेक्चर के बाद आप जो भी इस लेक्चर्स को देखेंगे वो एटलीस्ट इन चीज़ों को समझ जाएंगे कि हमें क्या चेन ऑफ सर्वाइवल क्या होता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट अडल्ट विक्टिम में कैसे करते हैं, सीपीआर को कैसे परफॉर्म करते हैं, हाई क्वालिटी सीपीआर और इसका रोल क्या होता है सर्वाइवल में, हम एईडी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और जब हम किसी विक्टिम को रिवाइव कर रहे होते हैं या हम लोग उसको बीएलएस दे रहे होते हैं तो टीम वर्क क्या चीज़ होती है, हम लोगों को कैसे टीम वर्क में काम करना चाहिए। आफ्टर द एंड of this presentation, you will all able to understand chain of survival, understand basic life support in adult victim, knows how to perform cardiopulmonary resuscitation, know how to give a high quality CPR, and what is the role in the high quality CPR in survival. Know when and how to use an AED, and also learns the importance of teamwork in the multi-rescuer resuscitation. When the rescuers are more, it is very important that we work in the team. And this is the introduction of BLS. BLS basically basic life support, जिसको हम लोग बोलते हैं basic life support, refers to the fundamental technique and procedures used to provide immediate care to individuals experiencing life-threatening emergencies. There are millions of life-threatening emergencies, और आजकल तो हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट आर वेरी कॉमन इन द यंग एजेस ऑल्सो। हम लोगों ने कई सारे वीडियोस में देखा है और वो कई सारी हम लोग आए दिन न्यूज़ आती रहती हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि शादी में लोग डांस कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं तो सडन कार्डियक अरेस्ट पड़ जाता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो दिस इज़ अ वेरी मेजर इमरजेंसी। इफ़ अगर हम लोगों को थोड़ा सा बीएलएस के बारे में भी जानकारी होगी तो हम क्या इस तरीके के पेशेंट्स को हम कहीं पे भी मदद करने या उनको हम प्रॉपर मेडिकल हेल्प तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। दिस इज़ बेसिकली फॉर ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए ये गाइडलाइन बनाई गई है जिनको कि लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज होती है, सच एज कार्डियक अरेस्ट, रेस्पिरेटरी अरेस्ट और चोकिंग। It is designed to maintain airway patency, support breathing, and promote blood circulation without the use of advanced medical equipments. This is a very good thing that BLS does not need any advanced medical equipment. We work with our own hands. There is no need of any advanced medical equipments that we require a very high quality mechanical equipments to revive the patient. That does not need any advanced medical equipment. This is the chain of survival for all the ages. This is common for all the ages. Like survival of the victims depends upon the certain links that need to be followed quickly and in a proper sequence. This is very important. जब भी हम लोग सीपीआर या बीएलएस करने के लिए जा रहे हैं तो प्रॉपर सीक्वेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। द इसेंशियल चेन आर इंटरलिंक्ड एंड आर कॉल्ड कोर चेन ऑफ सर्वाइवल। जब हम लोग इसको पूरी अच्छी स्टेप बाय स्टेप करते हैं और हम लोग इसको इफ़ेक्टिवली करने की कोशिश करते हैं किसी पेशेंट को रिवाइव करने के लिए, तो चेन ऑफ सर्वाइवल अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो रिवाइवल के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस कोर चेन ऑफ सर्वाइवल के ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं, लाइक हम लोगों को किस स्टेप में काम करना चाहिए। इमीडिएट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कार्डियक अरेस्ट एंड एक्टिवेशन ऑफ इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम।
early cardiopulmonary resuscitation with emphasis on chest compression, rapid defibrillation, effective advanced life support, integrated post cardiac arrest care. This is the diagrammatic presentation of chain of survival. In the first image, we show the early recognition and activation of emergency system, then early CPR, then early defibrillation, then advanced CPR, and then post resuscitation care. These are the 5 key points that we, during the BLS, we should kept in our mind. Approach to the victim. The first link consists of verify safety of site / surroundings. This is a very important. Assess the responsiveness of the victim. Call for help and check for pulse and breathing. This is basically a approaches to the victim. And how to verify the safety of site and surroundings. The time is essential for survival. All the viewers kindly kept in your mind, during the BLS, time is very important. So, essence for survival, but the safety of the rescuer is the most important, as well as time is very important during the BLS guideline, and the safety of the rescuer is also a very important point. But if the proper safety measures are not followed or the place is not safe during the resuscitation of the victim, mishap can cause injury to the rescuer. ये बहुत कॉमन है. यदि हम कभी किसी पेशेंट को जाके सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, यदि हमारे लिए हमारी जगह वो सेफ नहीं होगी हमारे लिए, तो ये तो वहाँ पे किसी भी तरीके की मिसहैपनिंग होना संभव हो. तो हम लोगों को इन नीचे दिए गए पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए. द साइट शुड बी सेफ फॉर बोथ द रेस्क्यूअर एंड द विक्टिम. रेस्क्यूअर शुड look around the site for any immediate threat. If the site is safe, resuscitation should be started immediately by the rescuer. And if there is an immediate threat, such as a risk of fire, fall of wall, drowning, electroconduction, crowd conflict, the rescuer must activate, inform the concerned authority, and seek help from the local people available to shift the victim to a safe place. ऐसा कभी भी अगर होता है कि हमको लग रहा है कि सीन सेफ है, तो हमको सबसे पहले वहाँ पे काम करना शुरू कर देना चाहिए. यदि सीन सेफ नहीं है, लाइक वहाँ पे आग लग सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कुछ ऐसा फॉल, दीवार गिर सकती है, डिसास्टर जैसी कंडीशंस हैं, तो जो भी उससे कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, हमको एज अर्ली एज पॉसिबल उनको इन्फॉर्म कर देना चाहिए. द हेल्प कैन बी टेकन फ्रॉम द पुलिस पर्सनल ऑल्सो, फायर ब्रिगेड staff or lifeguard or local authority by calling them and providing the necessary detail of the site. Only when the site becomes safe while managing this activity, the resuscitation should be started immediately. Assess the responsiveness of the victim. How can we assess the responsiveness of the victim? Assess the responsiveness of the victim to proceed the further action. How to approach the victim? Rescuer should approach the victim from the front facing of the victim face. Tap on the shoulders and speak loudly. Hello, how are you? आपको हमेशा यही बोलना है, हेलो हाउ आर यू. लोकल लैंग्वेजेस में भी हम बोल सकते हैं कि भाई आप कैसे हो. आपको जरूरी नहीं कि इंग्लिश में ही बोलना है, आप किसी भी लैंग्वेज में, जो भी आपकी क्षेत्रीय भाषा है, आप उसमें मरीज से पूछ सकते हैं आप कैसे हैं. इन अ लैंग्वेज विक्टिम कुड बी अंडरस्टैंड. Get the response from the victim. If the victim responds either by verbal response, तो बहुत अच्छी बात है कि अगर वो verbal response दे रहा है, and by a purposeful movement, then the cardiac arrest is unlikely. यदि कोई पेशेंट हाथ पैर हिला रहा है और मुंह से बोल रहा है, तो वहां पे कार्डियक अरेस्ट के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं. Such victims require constant monitoring. उनको मॉनिटरिंग अच्छे से हम लोगों को करते रहना चाहिए कुछ पेशेंट्स को. एंड बी शिफ्टेड
अर्ली एंड फास्ट टू नियर बाई मेडिकल फैसिलिटी। आपको कांस्टेंट मॉनिटरिंग करनी है, जो भी नियरेस्ट फैसिलिटी है उसको हम लोगों को एज अर्ली एज हम लोगों को पेशेंट को वहाँ पे शिफ्ट करने के लिए काम करना चाहिए। कॉल फॉर हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोगों को मदद जरूर लेनी चाहिए, कभी भी ओवर एक्सपर्ट नहीं बनना चाहिए। अगर मदद की ज़रूरत है तो आप मदद को बुलाएं, और इन BLS केसेस आपको इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम को जरूर अलर्ट कर देना है। मेक अ कॉल, इन्फॉर्म emergency response services and get emergency medical help। अब हमारे पास कुछ हमने सिनेरियोज डेवलप किए हैं। जैसे एक सिनेरियो ये है कि इफ़ नो हेल्प अवेलेबल, यदि हमारे पास कोई हेल्प अवेलेबल नहीं है और वन ट्रेंड रेस्क्यूअर है या अकेला रेस्क्यूअर है, तो हमें क्या करना है? हमको करना है अलर्ट द इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम। सबसे पहले आप अलर्ट कर दीजिए, सीक दियर expertise, ask them to get emergency medical devices, that is AED, and make arrangement for the transfer to the medical facility। आपको सब कुछ बोल देना है कि भैया इनको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है। आपको क्लियरली बोल देना है कि भाई यहाँ ये जगह है, फला जगह है, मरीज की ये स्थिति है, आप अपना सामान लेकर आ जाइए। शुड नॉट बी डन बिफोर असेसिंग द पल्स एंड ब्रीदिंग। ये सब काम आपको पल्स और ब्रीदिंग से पहले नहीं करना है। अगर आपने पहले कर दिया और कहीं पेशेंट तो चल भी सकता है, तो मेडिकल हेल्प की ज़रूरत क्या है? पेशेंट को तो हम लेके भी जा सकते हैं। द रेस्क्यूअर शुड कॉल फ्रॉम हिज और हर मोबाइल फ़ोन। आप अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोन करिए विद द स्पीकर मोड। आप उसको स्पीकर ऑन करके रखिए ताकि आपका असेसमेंट भी साथ ही साथ चलता रहे। ऑन वाइल परफॉर्मिंग द इम्पॉर्टेंट बेसिक स्टेप्स ऑफ BLS। Why so? With the technology advancement, easy availability of personal mobile। अभी तो आज के युग में मोबाइल फ़ोन हमारे सबके पास अवेलेबल होते हैं। तो एक सिनेरियो ये हो गया, जब हम अकेले रहते हैं तो हमें ये करना चाहिए। और जब हम कुछ सिनेरियो 2 हमने डेवलप किया है, इफ़ समवन अप्रोचेस टू द हेल्प, आ गया कोई, मोर देन वन पर्सनल प्रेजेंट, अदर पर्सन कैन बी एनी बाई स्टैंडर्ड, कोई भी हो सकता है, और ट्रेंड रेस्क्यूअर भी हो सकता है। अगर आपके पास कोई ऐसा आदमी आया है जिसको कुछ नहीं पता है, बाई स्टैंडर्ड है, तो हम उससे कैसे काम लेंगे? और यदि वो ट्रेंड है तो फिर हम उससे कैसे काम लेंगे? यदि पेशेंट जो है बाई स्टैंडर्ड है, तो वन ट्रेंड शुड बी परफॉर्म द कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन, जो CPR का स्टेप होता है, जो ट्रेंड है वो करेगा। अनदर वन बाई स्टैंडर्ड कैन कॉल फॉर द हेल्प विद द ऑल डिटेल्स ऑफ द विक्टिम एंड आस्क देम टू ब्रिंग द AED। जो दूसरा वाला आदमी है वो कॉल करने का काम करेगा। नाउ वाइल द ERS इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम आ जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, प्लीज असेस द विक्टिम एंड पल्स। आपको विक्टिम का पल्स और ब्रीदिंग दोनों असेस करना है। अभी आपका अगर ट्रेंड रेस्क्यूअर आता है तो हमें क्या करना है? वन शुड परफॉर्म द कार्डियोपल्मोनरी। अब इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ये करेगा वो करेगा, कोई भी कर सकता है उसमें से एक। वन शुड परफॉर्म द कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन। अनदर ट्रेंड रेस्क्यूअर कैन कॉल फॉर हेल्प विद ऑल डिटेल्स ऑफ विक्टिम एंड ब्रिंग द AED। नाउ व्हाइल द ERS इज बीइंग एक्टिवेटेड, द फर्स्ट रेस्क्यूअर विल प्लीज असेस टू ब्रीदिंग एंड पल्स। फर्स्ट रेस्क्यूअर को ये काम करना है। सेकेंड रेस्क्यूअर कैन टॉक विद द डॉक्टर और मेडिसिन पर्सन एंड सीक दियर मेडिकल एक्सपर्ट ओपिनियन। दूसरे वाले को उनसे बात कर, एक आदमी को काम करते रहना। व्हाट टू मेंशन वाइल कॉलिंग ERS। आपको क्या क्या मेंशन करना है जब आप ERS को कॉल कर रहे हैं? आस्क द ERS टू कम क्विकली एंड ब्रिंग द AED while giving all the details of the victim and place where the event happened। this is very important। आपको बहुत अच्छी तरीके से बताना है कि कहाँ पे ये घटना हुई, पूरा डिटेल उसका बताना है ताकि वो इजीली वहाँ पे पहुँचे। एंड डोंट पुट डाउन द फोन टिल दे आस्क यू टू डू सो। जब तक वो समझ न जाए तब तक फ़ोन काटने की ज़रूरत नहीं। नोट, at any point of time, if any local help is available, it should be taken and that person should be asked to alert the medical emergency। What is the emergency response services code? ERS numbers is unique emergency number of the country. The local emergency numbers or pan India number is 112, 108 and 10। Now check for pulse and breathing।
नेक्स्ट यू must assess for the presence of pulse and breathing simultaneously while you are informing, alerting, activating the emergency medical services. उसी समय आपको पल्स चेक कर लेनी है और ब्रीदिंग चेक कर लेनी है साथ ही साथ. चेक, फील, एग्जामिन पल्स. इन अडल्ट फॉर पल्स चेक कैरोटिड शुड बी एग्जामिन. कैरोटिड पल्स आपको यूज करनी है जो कि नेक में होती है. ड्यूरिंग द पल्स चेक the rescuer should be simultaneously look for chest breathing also. यहाँ पे कुछ हम लोगों को सावधानियां बरतनी है. The carotid should be examined for definitive presence for not more than 5 to 10 seconds. Assess for breathing. To assess for breathing, observe the victim's chest rise. chest ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है. Fall for not more than 10 seconds. Breathing is present. Continue monitoring the victim until the extra help arrives. Breathing is absent or only gasping. This is not a normal condition and it indicates cardiac arrest situation. अगर ब्रीदिंग नहीं ले रहा है तो सांस भी कभी भी, दिल की धड़कन भी रुक जाएगी. यहाँ पे भी हम लोगों को थोड़ी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी. During the assessment, if the presence of pulse or breathing cannot be determined, it should be resumed. The victim is in cardiopulmonary arrest condition. आप ये समझ जाइए कि पल्स और रेस्पिरेशन नहीं आ रहा है तो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट जैसी कंडीशन डेवलप हो चुकी है. चेकिंग ऑफ पल्स एंड असेसमेंट ऑफ ब्रीदिंग शुड नॉट टेक मोर देन 10 सेकेंड्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको टाइम वहाँ पे बचा के चलना है. हाउ टू एसेस टाइम. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा चीज़ है कि आपको, आपके पास घड़ी नहीं है, आपको घड़ी नहीं देख सकते तो आप टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो आपके पास कुछ थोड़ा सा ये डेवलप है. आप इस तरीके से कर सकते हैं कि असेसमेंट ऑफ टाइम शुड बी डन बाय चैटिंग लाउडली. 1001, 1002, 1003 ऐसे ही आपको 1010 तक करते रहना है फॉर 10 सेकेंड. जब आप 1001 बोलते हो तो 1 सेकेंड हो जाता है. अवॉइड एनी डिले इन इनिशिएटिंग अर्ली हाई क्वालिटी CPR. विक्टिम ब्रीदिंग नॉर्मली विद डेफिनेटिव कार्डियक कैरोटिड पल्स. यदि विक्टिम नॉर्मली ब्रीदिंग भी कर रहा है और पल्स भी है तो मॉनिटरिंग ऑफ विक्टिम शुड बी डन. असेसमेंट ऑफ द विक्टिम इन एवरी 2 minutes और early to determine any change in condition until the help arrive. दोनों चीजें आ रही हैं तो आप मॉनिटरिंग करते रहिए और हर 2 मिनट पे आप क्या करते रहिए, असेस करते रहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है अरेस्ट हो जाएगा. प्लेस द विक्टिम इन अ रिकवरी पोजीशन. ट्रांसफर विक्टिम अर्ली. थोड़ा सा नोट है, हम लोगों को वो भी ध्यान रखना है. ड्यूरिंग दिस टाइम द विक्टिम शुड बी असिस्टेड एंड मैनेज्ड एज पर स्टेप्स डिफाइंड इन द एल्गोरिथम. BLS की एल्गोरिदम में अलग से उसके लिए वीडियो बना के डाल दूंगा. आपको एल्गोरिदम भी देखते रहना है, उसकी तरह से ही एसेस करते रहना है. देन विक्टिम शुड बी शिफ्टेड. विक्टिम ब्रीदिंग एबनॉर्मली विद डेफिनेटिव पल्स प्रेजेंट. ब्रीदिंग एबनॉर्मली है लेकिन डेफिनेटिव पल्स प्रेजेंट है. गिव रेस्क्यू ब्रेथ. दिस इज अ कंडीशन ऑफ अ रेस्पिरेटरी अरेस्ट. देन व्हाट टू डू. सांस नहीं ले रहा है तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट है, तो हमें क्या करना है. Confirm that the emergency response services have been activated or informed. Continue to give rescue breath and check for pulse about every 2 minutes or earlier. Observe any change in the victim condition till the help arrives. How much to ventilate and rate. ये हम लोगों को सवाल उठेगा कि भाई कितना वेंटिलेट करना है, कैसे वेंटिलेट करना है. If there is a visible or obvious chest rise, this is end point of adequate ventilation. Victim should be given normal tidal volume, normal breath every 5 seconds. हर 5 से 6 सेकेंड में हमको सांस देनी चाहिए ताकि 12 सांस के आसपास मेंटेन रहे. Either mouth to mouth और mouth to mask और बैग मास्क वेंटिलेशन डिवाइस. इफ अगर बैग मास्क डिवाइस अवेलेबल है तो उससे करिए, या माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे दीजिए, या मास्क अवेलेबल है तो मास्क से. ईच ब्रेथ शुड बी डिलीवर्ड फॉर 1 सेकेंड और 1 सेकेंड काउंट करने का तरीका हम लोगों को पहले से पता है. टाइम असेसमेंट शुड बी डन बाय चैटिंग लाउडली 1001, 1002. एबनॉर्मल और नो ब्रीदिंग विदाउट अ डेफिनेटिव. ब्रीदिंग भी नहीं है और पल्स भी नहीं है तो हमें क्या करेंगे. द विक्टिम इज इन कार्डियक अरेस्ट
Next, what to do? Immediately start high quality CPR along with giving breathings at earliest. Dress covering the victim chest should be moved or removed. आपको चेस्ट को क्लियर कर लेना है कि कहाँ आपको हैंड प्लेसमेंट रखना है, कैसे आपको हैंड प्लेसमेंट रखना है. दिस ऑल्सो हेल्प्स इन प्लेसमेंट ऑफ AED when it arrives in the chest area. High quality CPR with adequate chest compression. This is the second link of chain of survival and it consists of 3 interlinked steps. जब हम लोगों ने चेन ऑफ सर्वाइवल पढ़ा था उसका दूसरा था कि हमको CPR देना है, उसके 3 पॉइंट्स हम लोगों को ये ध्यान रखने हैं, इंटरलिंक स्टेप्स या ध्यान रखने हैं. प्रोवाइडिंग एडिक्वेट चेस्ट कंप्रेशन, ओपनिंग द एयरवे एंड डीप ब्रीथिंग. प्रोवाइडिंग एडिक्वेट चेस्ट कंप्रेशन कब देना है? As soon as the cardiac arrest becomes obvious, evident, and the rescuer should give the high quality CPR immediately. Chest compression कैसे करना है? Start with 30 compression in one set and the compression should be effective. अगर आप अकेले हैं तो कैसे करना है? Use the compression to ventilation ratio of 30 compression to 2 breaths when giving the CPR to the victim of any age if you are alone. If rescuer more than one, यदि आप एक से ज़्यादा हैं, one rescuer perform the chest compression and other will administer breath. Both the rescuers should interchange every 5 cycles. मीन्स 30:2 के साइकिल्स पे हम लोगों को हर 5 साइकिल के बाद चेंज कर लेना, नहीं तो सांस लेने वाला उधर आ जाएगा, एक थक जाएगा एक नहीं थकेगा. Means 5 cycles of 30 compression and 2 breathings to avoid exhaustion and maintain effective chest compression. यहाँ पे भी कुछ नोट हैं. After the 5 cycles of CPR, the victim should be assessed again for the carotid pulse. हर 5 साइकिल के बाद आप असेस करिए. यहाँ पे कुछ सावधानियां भी लेनी है. No movement of the victim while during CPR unless the victim is in dangerous atmosphere. एटमॉस्फियर में कोई डेंजरस लग रहा है तो आप किनारे करिए, अन्यथा उसको बार बार मूव मत करिए. No rescuer cannot be performed CPR effectively in the victim's present situation. If help arrives, continue the CPR or transfer the victim to nearby hospital. No leaning on the victim's chest during the chest compression. Technique of chest compression. Place your hand by the side of the victim. Place yourself by the side of the victim. आप एक किनारे एक साइड में बैठ जाइए, either right or left, both sides are available. Make sure the victim is laying face up on a firm. Place your hands and body to perform the chest compression. Give chest compression at a rate of 100 to 120 compressions per minute. अब ये जो आपको दोनों हाथ रखने हैं, पहला हाथ आपको अपने हैंड का हील रखना है. पहले आपको एक हील रखना है, फिर उसके ऊपर दूसरा रखना है, फिर लॉक करना है, और फिर क्या करना है, अपने एल्बो जॉइंट्स को लॉक करना है और शोल्डर लॉक करने हैं. और फिर हम लोगों को 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट की रफ्तार से पुश डाउन हार्ड फॉर एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर्स विद ईच कंप्रेशन. हर कंप्रेशन को कम से कम 5 सेंटीमीटर तक दबाना है. 2 to 2.4 इंचेस भी बोला जाता है इसको. प्रेस डाउन स्ट्रेट ऑन द विक्टिम्स लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम. लोअर हाफ को दबाना है. हम लोग G5 प्रोसेस से 2 इंचेस अबव अपने हाथ रखेंगे तो लोअर हाफ पे आ जाएगा, फिर हम उसको इजीली प्रेस डाउन कर सकते हैं. अलाउ कंप्लीट चेस्ट रिकॉइल एट द एंड ऑफ द ईच कंप्रेशन. इंटरप्शन इन चेस्ट कंप्रेशन शुड बी अवॉइडेड. जितना हो सके आप इंटरप्शन को अवॉइड करें. कंपोनेंट्स ऑफ हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन. एक तो आपको पुश हार्ड, पुश फास्ट. पुश फास्ट करना है. पुश फास्ट मीन्स द कंप्रेशन शुड बी एटलीस्ट एट द रेट ऑफ 100 to 120 कंप्रेशन. पुश हार्ड मतलब डेप्थ ऑफ कंप्रेशन शुड बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर, नॉट लेस देन 6 सेंटीमीटर, नॉट मोर देन 6 सेंटीमीटर्स. ज़्यादा भी नहीं दबा देना है, 5 सेंटीमीटर्स तक दबाइए. 2 to 2.4 इंचेस तक दबाइए. अलाउ द चेस्ट टू रिकॉइल. ये भी हमको ध्यान रखना है कंप्लीटली आफ्टर द कंप्रेशन. इंटरप्शन इन बिटवीन द चेस्ट कंप्रेशन शुड बी मिनिमाइज्ड. जितना हो सके कम से कम इंटरप्शन आप करिए चेस्ट कंप्रेशन के दौरान.
हाइपर वेंटिलेशन शुड बी अवॉइडेड, ज़्यादा हाइपर वेंटिलेट भी नहीं करना है पेशेंट को। फिर हम लोगों को पेशेंट का चेस्ट वो माउथ ओपनिंग भी करना पड़ेगा। देन ओपनिंग द एयरवे कैसे करते हैं? आफ्टर द फर्स्ट चेस्ट 30 चेस्ट कंप्रेशन द रेस्क्यूअर शुड बी ओपन द एयरवे। टू टेक्निक्स used for opening the airway, one is head tilt chin lift and other one is jaw thrust. Mostly head tilt and chin lift maneuver is performed. Only jaw thrust or chin lift are performed in the victim in suspected cervical spine trauma. Steps of performing jaw thrust: place the palm and 3 fingers on the victim's forehead, keeping the index finger and thumb free. इंडेक्स फिंगर और थंब को आपको फ्री रखना है। नाउ प्लेस द फिंगर ऑफ द लोअर ऑफ द अदर हैंड अंडर द बोनी पार्ट ऑफ द जॉ नियर द चिन। डू नॉट प्रेस डीपली इनटू द सॉफ्ट टिश्यू एंड डू नॉट यूज थंब टू लिफ्ट द चिन। थंब को कभी भी चिन को उठाने के लिए यूज नहीं किया जाता। टिल्ट द हेड बैक एंड लिफ्ट द चिन टू ब्रिंग द चिन फॉरवर्ड। ये जो मेथड्स होते हैं इनको बहुत अच्छे से करना चाहिए। इसमें ईसी टेक्निक भी आती है, मास्क फोल्डिंग टेक्निक भी आती है, माउथ ओपनिंग टेक्निक भी आती है। लेकिन जो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को आपको फोर हेड से क्या करना है, नीचे की तरफ मैंडिबल को मूव करना रहता है और थंब का यूज़ हम लोग चिन लिफ्ट के उसमें नहीं करते हैं। इसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बना के डालें। गिविंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग ब्रेथ्स, कैसे ब्रेथ्स हम लोगों को ट्रांसफर। एज सुन एज द चेस्ट कंप्रेशन इज स्टार्टेड, 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स शुड बी गिवन यूजिंग माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे सकते हैं, माउथ टू मास्क ब्रीदिंग दे सकते हैं, बैक मास्क डिवाइस से दे सकते हैं। ब्रेथ शुड बी डिलीवर ओवर 1 सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी सांस दीजिए आप 1 सेकेंड की होनी चाहिए। इट शुड बी टाइडल वॉल्यूम ब्रेथ विद द विजिबल चेस्ट राइज एज एट द एंड। चेस्ट भी उठना चाहिए, ये भी आप देख लीजिए। अलाउ 1 सेकेंड फॉर एक्सलेशन, एक्सलेशन के लिए भी 1 सेकेंड आपको देना है। एंड ओवर 1 सेकेंड फॉर अनदर ब्रेथ शुड बी प्रोवाइडेड। हर इंस्पिरेशन को भी 1 सेकेंड देना है और एक्सपिरेशन को भी 1 सेकेंड देना है। चेस्ट कंप्रेशन शुड बी रीस्टार्टेड इमीडिएटली विदाउट वेटिंग फॉर एक्सलेशन। चेस्ट कंप्रेशन में आपको एक्सलेशन का वेट नहीं करना है। हाउ टू प्रोवाइड ब्रेथ, यूनिवर्सल प्रिकॉशन शुड बी फॉलोड। ये बहुत जरूरी है कि आप माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दे रहे हैं तो यूनिवर्सल प्रिकॉशन आपको फॉलो करने हैं। एंड द रेस्क्यूअर शुड बी यूज बैरियर डिवाइस लाइक पॉकेट मास्क टू गिव ब्रेथ। पॉकेट मास्क का यूज हमको करना चाहिए, या कुछ हमारे पास पॉकेट मास्क नहीं है तो कुछ हम लोग हैंड करचिप या रुमाल वगैरह कुछ भी हमारे पास अवेलेबल है तो हम उसका भी यूज कर सकते हैं। पॉकेट मास्क जो क्या होते हैं, पॉकेट स्मार्ट्स आर अवेलेबल इन किट पैकिंग that includes a collapsed mask, a one-way valve, a pair of gloves and alcohol swab. The pocket mask is a triangular shape with an apex, a base and a connector. The connector has one-way valve that will act as barrier. में थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान और रखना पड़ेगा। It is to be noted that as soon as AED or defibrillation is used, defibrillator जब भी हम लोग यूज करते हैं, rather than pulse check, rhythm analysis need to be done after 5 cycles of CPR will return of spontaneous circulation. आपको हर 5 साइकिल के बाद क्या करना है, स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन के लिए असेसमेंट करते रहना पड़ेगा। रैपिड एंड अर्ली डिफिब्रिलेशन कैसे करते हैं, EED कैसे करते हैं, दिस इज द थर्ड कोर लिंक ऑफ BLS। जब लोगों ने में पढ़ा है आपने, चेन ऑफ सर्वाइवल का थर्ड कोर लिंक होता है। रैपिड एंड अर्ली डिफिब्रिलेशन शुड बी डन एज सुन एज एनी सडन कार्डियक अरेस्ट इज विटनेस्ड। जैसे भी हमको दिखे हमको तुरंत करना चाहिए। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर शुड बी यूज्ड टू डिलीवर द शॉक डिलीवरिंग डिवाइस होती है। और मैनुअल डिफिब्रिलेटर कैन ऑल्सो बी यूज्ड। यदि मैनुअल डिफिब्रिलेटर्स हमारे पास इमरजेंसीज में या कहीं पे अवेलेबल हैं तो हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ द ट्रेन रेस्क्यूअर इज प्रेजेंट। लेकिन यहाँ पे ट्रेन रेस्क्यूअर के द्वारा ही किया जाता है। Rescuer himself or should ask nearby layman to get the AED, but it should be used by the trained person. लाने को कोई भी ला सकता है लेकिन करना एक ट्रेन रेस्क्यूअर को ही करना होगा। Defibrillation should be done as soon as the emergency medical team arrives with the device, but till that time high quality CPR should be continued.
लेने जा रहे हो या कुछ कर रहे हो, उसको तैयारी कर रहे हो, उस समय आपको क्या करना है, CPR चाहिए। व्हेन टू एडमिनिस्टर शॉक, फर्स्ट शॉक मस्ट बी गिवन एट अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेजेस ऑफ CPR साइकिल। जितनी जल्दी हो सके फर्स्ट आपको देना होता है, लेकिन साइकिल्स के बाद ही देना होता है। आफ्टर गिविंग शॉक रिदम शुड बी असेस्ड यूजिंग द डिफिब्रिलेटर मॉनिटर, उसमें मॉनिटर होता है, उस मॉनिटर में हम लोग रिदम को देख सकते हैं। एंड द फर्दर डिफिब्रिलेशन शुड बी गिवन इफ रिक्वायर्ड, अगर आगे जरूरत पड़ती है तो हमें देना। कब नेक्स्ट शॉक कब हमें देना है, इट शुड बी डन आफ्टर एवरी 5 सेट्स ऑफ CPR, 5 साइकिल्स, मतलब 30:2 के 5 साइकिल्स के बाद देना है। AED क्या होता है, ये AED जिससे हम शॉक देते हैं, इट इज़ अ बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस, इसमें एक बैटरी लगी होती है, विच व्हेन अप्लाइड टू द विक्टिम प्रॉपरली डिटेक्ट एंड एनालाइज द रिदम ऑटोमेटिकली एंड प्रॉम्प्ट्स द यूजर रिगार्डिंग फर्दर एक्शन एज रिक्वायर्ड। इट इज़ अ पब्लिक एक्सेस डिवाइस, ये नॉर्मली होती है, पब्लिक डिवाइस होती है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। हेल्थ अथॉरिटीज शुड बी अवेयर ऑफ द मैपिंग ऑफ द AED अवेलेबिलिटी इन द एरिया। इसके लिए एजेंसीज बनी हुई हैं जो डिफरेंट कहाँ कहाँ पे कितना कितना अवेलेबल है, या अवेलेबिलिटी को वो पूरा करने का काम कर रहे हैं। सो दैट ERS टीम गेट्स द AED फ्रॉम द नियरेस्ट पॉसिबल एरिया एंड यूज इट। हम सपोज यहाँ से कहीं जा रहे हैं, वहाँ पे हमको अगर पता रहेगा AED मिल जाएगा और हमारे पास नहीं तो हम वहाँ से भी ले सकते हैं। इसलिए सभी जगह पे नियर सभी जगह के इक्विपमेंट की लिस्ट एक दूसरे मेडिकल फैसिलिटीज़ के पास शेयर है। AED अवेलेबल इन वेरियस टाइप्स बट ऑल AED मशीन हैव द फॉलोइंग थिंग्स इन कॉमन। पावर ऑन बटन होता है, प्लग विद सेल्फ स्टिकिंग पैड्स होते हैं जो चिपकाने वाले, शॉक डिलीवरिंग बटन होता है, स्पीकर विद वॉइस प्रॉम्प्ट होता है, और बैटरी। वेयर टू अप्लाई, दो जगह अप्लाई कर सकते हैं, एक हम लोग एंटीरियर लेटरल कर सकते हैं और एक एंटीरियर पोस्टीरियर कर सकते हैं। इसके जो 2 पैड्स होते हैं हम लोग 2 जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप्स फॉर यूजिंग AED, एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर को कैसे यूज़ किया जाता है। स्टेप 1 में आपको पावर ऑन करना है, AED प्रॉम्प्ट्स विद द वॉइस मैसेज, वो वॉइस मैसेज देगा, उसको सुनना है और उसको फॉलो करना। सॉरी, स्टेप 2 में अटैच द एडहेसिव पैड्स ऑन द चेस्ट ऑफ द विक्टिम, मैंने बताया एक एंटीरियर और लेटरल होता है, एक एंटीरियर और पोस्टीरियर होता है, आप दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं। अटैच द AED कनेक्टिंग ट्यूब्स टू द AED डिवाइस, आपको ट्यूब्स अटैच करना है। स्टेप 3 में स्टैंड क्लियर ऑफ द विक्टिम, जब भी आप शॉक डिलीवरी करने के लिए जा रहे हैं, आपको पहले जैसे ही मशीन बोलता है कि स्टैंड क्लियर, तो आपको उस मशीन से, पेशेंट से दूर हो जाना है। मेक श्योर एनीबडी इज नॉट टचिंग द विक्टिम। लेट AED एनालाइज द रिदम, आप AED को रिदम को एनालाइज करने दीजिए, विच विल टेक्स अ फ्यू सेकेंड्स, थोड़ा कुछ चंद सेकेंड्स में वो कर लेगा। 4 स्टेप में क्या करना है, इफ AED प्रॉम्प्ट फॉर द शॉक एडमिनिस्टर इट बट बिफोर गोइंग फॉर शॉक, आपको क्या करना है, आपको ये जरूर बोल देना है, समवन AED प्रॉम्प्ट्स यू टू प्रेस द बटन। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जब भी कभी आप शॉक डिलीवरी करने के लिए जा रहे हो, उससे पहले आपको वहाँ से पेशेंट को टच नहीं करना है, वरना शॉक आपको भी लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, मेक श्योर नोबडी इज टचिंग द विक्टिम, इवन द रेस्क्यूअर हु इज गिविंग ब्रेथ, जो ब्रेथ दे रहा है वो भी। आपको से लॉडली क्या कहना है, बहुत तेजी से कहना है, ऑल क्लियर, लुक टू मेक श्योर अगेन। आपको ये बोल देना है ऑल क्लियर, मतलब सब लोग वहां से हट जाएंगे तो आप शॉक डिलीवर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, पुश द शॉक बटन, वो बटन दबा दे। जैसे ही शॉक की डिलीवरी हो जाती है, सडन कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स होता है, जैसे आप शॉक डिलीवर करते हो तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ताकि हार्ट जो है पंप कर जाए। स्टेप 5 में हमको क्या करना है, इफ AED प्रॉम्प्ट्स नो शॉक नीडेड एंड आफ्टर एनी शॉक डिलीवरी इमीडिएट रिज्यूम CPR। अगर शॉक नीडेड है तो आपको स्टे क्लियर बोलना है, अगर वो बोलता है शॉक नीडेड नहीं है तो आपको CPR स्टार्ट कर देना, चेस्ट कंप्रेशन। आफ्टर अबाउट 5 साइकिल्स और 2 मिनट्स ऑफ CPR AED विल प्रॉम्प्ट अगेन, से वो 2 मिनट के बाद क्या करेगा, फिर से आपको चेकिंग करनी है। अगर नो शॉक बोलता है तो आपको फॉलो सेम स्टेप करने हैं, अगर शॉक डिलीवरी करता है तो स्टे क्लियर कर। कंटिन्यू अंटिल द एडवांस लाइफ सपोर्ट प्रोवाइडर्स हेल्प अराइव्स, तब तक करते रहना है जब तक कोई एडवांस हेल्प हमारे पास ना आ जाए। यहाँ पे भी कुछ प्रिकॉशंस हैं, उसको ध्यान रखना है। डोंट यूज़ पीडियाट्रिक पैड्स फॉर एडल्ट, आपको जो पैड्स हैं वो स्पेशल पैड्स जो पीडियाट्रिक्स के लिए बने हैं वो बच्चों में यूज़ होते हैं, जो अडल्ट्स के लिए हैं वो अडल्ट्स में यूज़ होते हैं। आपको अडल्ट्स वाला बच्चों में नहीं यूज़ करना है, बच्चों वाला अडल्ट्स में यूज करना है। रिकवरी पोजिशन, आफ्टर द स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन रिकवर्स, आपको पेशेंट को क्या करना है, रिकवरी पोजिशन में
If the victim is showing signs of return spontaneous circulation, the normal breathing, they should be positioned in a recovery position until the medical help arrives or the victim is shifted to the medical facility. The recovery position can be either left or right, किधर भी हो सकती है. This is a lateral position. Position the victim, monitor the victim and reassess every 2 minutes or earlier if required. यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं. द रिकवरी पोजीशन अलाउज मेंटेनेंस ऑफ द एयरवे एंड ड्रेनेज ऑफ द ओरल सिक्रीशन. अगर कुछ ओरल सिक्रीशन आएंगे तो वो भी निकलते रहेंगे. स्टेप्स ऑफ रिकवरी पोजीशन, कैसे पेशेंट को हम डालें. नील बिसाइड द विक्टिम्स ऑन द साइड ही इज टू बी टर्न. जिधर टर्न करना है उधर आप बैठ जाइए. एक्सटेंड द विक्टिम्स आर्म टूवर्ड्स यू टू मेक द परपेंडिकुलर ऑफ हिज बॉडी. उसको एक्सटेंड कर लेना है. बेंड हिज आर्म at the elbow to make the forearm parallel to the head with the palm facing up. Place the victim's other arm across his chest to hold the shoulder on your side. With your hand towards the victim's feet, grasp the back of his side thigh a few inches above the knee and pull the thigh up towards his body. With your other hand, hold the victim's foreside shoulder, pulling with the both your hands simultaneously. Pull the victims towards you. अपनी तरफ खींच लो. Now shift the victim's hand that was holding his shoulder underneath his lower cheek and tilt his head back to keep his airway open. Keep the lower leg straight and while keeping the upper leg bent. Keep checking the breathing often every 2 minutes. If the breathing stops at any time, roll the victim back supine position and start CPR. Early transfer. The victim should be shifted to the nearest healthcare facility for definitive management of the underlying cause of the cardiopulmonary arrest. Nearest healthcare facility can be according to the local or national protocols. इसके लिए protocols बने हुए हैं, उसके according करना है. Till the time victim is arranged for the shifting to the definitive medical care facility of the BLCS basic life care support should be continued as mentioned earlier. Thank you so much. I hope कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा. यदि पसंद आया है तो आगे की वीडियोस के लिए आप इंतजार करें. थैंक यू सो मच.